جی ویورز، اگلے زوڈیک سائن کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے لیبرا، جس کو ہم اردو، عربی، فارسی میں کہتے ہیں میزان. اور اس کا جو عرصہ ہے وہ 24 ستمبر سے 23 اکتوبر تک رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عرصے کا کہ اس ٹائم میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کا تعلق برج میزان کے ساتھ ہے. اچھا، اب جو اس کا حاکم سیارہ ہے وہ ہے زہرہ، جس کو ہم وینس کہتے ہیں. اور اس سے منسوب جو حروف ہیں جن سے بچوں یا بچیوں کے نام رکھنے چاہیے وہ ہیں رے، تے اور توئے. ٹھیک ہے، آر اور ٹی انگلش میں ہم کہتے ہیں. اچھا، نام جو ہے وہ بچے یا بچی کا سوچ سمجھ کے رکھیں، انہی حروف سے رکھیں. بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ کور اپ آپ آٹومیٹیکلی کر لیتے ہیں اللہ کی رحمت سے، نام صحیح رکھ کے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے منسوب جو دن ہے نا وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے. سارے دن مبارک ہیں، جمعۃ المبارک سے ریلیٹڈ ہے میزان یا زہرہ. اور اس کا جو لکی نمبر کہنا چاہیے نمبر 6 ہے. اور اس کے اندر جو رنگ آپ پہنے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ زندگی پہ بہت اچھا آئے گا. وہ ہے ہلکا نیلا یا ہلکا سبز، پیرٹ گرین یا اسکائی بلو. یہ کلرز آپ پہنے، زیادہ اپنی زندگی میں کوشش کریں تو اس کا امپیکٹ شخصیت کے اوپر بہت اچھا آتا ہے. دوسرا یہ کہ اوپل اور سفید پکھرات جو ہے وہ اگر آپ پہننا چاہیں، عقیق پہننا چاہیں پہنیں. اور روبی بھی پہن سکتی ہیں آپ اگر خاتون ہیں. خاص طور پہ برج میزان سے اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ ضرور پہنیں، کیونکہ یہ تقدیر کو تو خیر تبدیل نہیں کرتے پتھر، یہ باڈی انرجیز کو پیوریفائی کرتے ہیں، ان کو تقویت دیتے ہیں، انرجی اور زیادہ بڑھتی ہے. یہ پتھر آپ پہن سکتے ہیں یا پہن سکتی ہیں. اچھا، اس میں جو میزانی افراد ہیں، خواتین ہیں، حضرات ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ جو سسرالی آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بحث مباحثے کے چانسز ہیں، جھگڑا ہو سکتا ہے، تو آپ نے ایوائڈ کرنا ہے. تو آپ نے پیس آف مائنڈ اپنا انٹیکٹ رکھنا ہے، آپ نے پیچھے ہو جانا ہے اور اپنے اس بھائی کی بات یاد رکھنی ہے کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ کنڈیوسو نہیں ہے اس لحاظ سے کہ سسرالی معاملات جو ہیں اس میں زیادہ آپ نے نہیں جانا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، دیکھیں بات ہی کہ اگر میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ خاندان میں پھر پڑ جاتی ہیں دراڑیں، تو ذمہ دار اگر آپ ٹھہرائے جائیں یا ٹھہرائی جائیں تو وہ غلط ہو جاتی ہے نا بات. تو اس لیے آپ اوائڈ کریں، حکمت عملی اچھی اپنائیں، سائڈ پہ ہو جائیں. اور باقی یہ ہے کہ روپے پیسے سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں کاروباری افراد کے لیے وہ بہت اچھے ہیں. یعنی اس لحاظ سے بہتر ہیں کہ آپ نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹس اگر کی ہیں ان کے ریٹرن آپ کو اس ویک میں اگلے ویکس میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ. شارٹ ٹرم کی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں ان کے اندر بھی ریٹرنز آپ کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایون اگر آپ نے کوئی پراپرٹی بائی کی ہوئی تھی تو وہ اس ویک میں آپ کو اپریشیٹڈ یعنی بڑی ہوئی قیمت کے ساتھ آفر آ سکتی ہے کہ جناب اگر آپ نے بیچنا ہے تو شاید 3 یا 4 گنا زیادہ جو ہے وہ منافع آپ کو دے سکتی ہے. مگر اٹ از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو سیل دا پراپرٹی. ابھی نہ بیچیں، اگر ہولڈنگ پاور ہے تو اس کو روک کے رکھیں. دوسری چیز، جو ملازمت پیشہ میزانی افراد یا خواتین ہیں ان کے لیے بھی ویک جو ہے وہ قدرے بہتر ہے. اس لحاظ سے بہتر ہے کہ آپ جس پوزیشن پہ اچھی پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، آپ کے لیے ٹریول ابراڈ اپرچونٹیز جو ہیں اپنی کمپنی یا اپنے ادارے کی طرف سے بنتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس میں آپ جاتے ہیں یا جاتی ہیں تو بہت زیادہ کمپنی کو بھی فائدہ دیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. فیملی لیول کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو میزانی افراد ہیں وہ اپنے فیملی ممبرز میں گھلتے ملتے تو نظر آتے ہیں، مگر وہی والی جو شروع والی بات میں نے کی ہے کہ جہاں پہ بحث مباحثہ تکرار ہے، خاص طور پہ سسرالی رشتہ داروں والے معاملے میں، اس میں آپ نے اوائڈ کرنا ہے. گہما گہمی والا ہفتہ ہے بہرحال آپ کا. یہ سفر جو ہے وہ انشاءاللہ خوشگوار ثابت ہوں گے اس ویک کے اندر جو آپ کریں گی. اور زیادہ تر جو لوگ ہیں نا یہ لیتے ہیں پرائز بانڈز لے لیتے ہیں یا لاٹریز وغیرہ لے لیتے ہیں، ان کے لیے یہ ویک جو ہے قدرے نہیں بلکہ میں کہوں گا بہت زیادہ بہتر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی جو ہے نا قوت ذہنی قوت جسمانی کے اوپر اس ویک میں پلان کیجئے کہ آپ نے آگے لائف کو کیسے لے کے چلنا ہے، کیونکہ یہ ویک جو ہے یہ آپ کو
इन चीज़ों में प्रॉपर पॉजिटिव चीज़ों में हेल्प करता हुआ अल्लाह की मदद से नज़र आता है। इस वीक से फ़ायदा उठाएं। जिन अफराद की शादियां डिले हैं, ज़ोहरा ख़वातीन हैं, हज़रात हैं, इस वीक में उनको शादियों से रिलेटेड या रिश्तों से रिलेटेड बहुत अच्छी गुड न्यूज़ जो है वो सुनने को मिल सकती है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, अब हम आते हैं सदकात की तरफ। तो सदकात जो हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुस्तहीकीन को दें, उसको दें जो आपका अपना बहन भाई हो सकता है, अजीज रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त अहबाब हो सकते हैं, महल्लेदार हो सकते हैं। किसी को जताइए मत कि मैं आपको सदका दे रहा हूँ। इज्जत से, एहतराम से उसकी खिदमत में पेश करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से कारोबार करें। देखें, सदका जो है वो आपके लिए मैं बता देता हूँ कि क्या है। सदका आप दे सकते हैं सफ़ेद खीर, सफ़ेद कपड़ा, सुर्ख कपड़ा, चांदी, दही, अनारदाना, अंडे, चावल, सफ़ेद गोश्त, ठीक है। ये चीज़ें आप जो है ये सदके में दे सकते हैं, सारी की सारी, या कोई एक चीज़ जो है वो सदके में ज़रूर दें, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला है, मौत तक को टालने की ताकत अल्लाह ताला ने इसके अंदर रख छोड़ी है। अच्छा जी, अब हम आपको ये बताते हैं जनाब कि आपके लिए इस हफ्ते में पढ़ना आपने ये है कि सूरह अखलास जो है वो आपने फजर की नमाज के बाद और ज़ोहर की नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़नी है। 3, 5, 7, 11 या 21 मरतबा दरूद शरीफ अव्वल आखिर और दरमियान में। और जनाब जब आप ये करेंगे, अपनी इबादत को इंटैक्ट रखेंगे, तो फिर सूरह अखलास की जो बरकत है ना इस वीक में, उसकी कुछ रेडिएशन इस तरह की हैं कि इस वीक में अगर आप ये पढ़ते हैं प्रॉपर तरीके से, बहुत फायदे मिलेंगे इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ बढ़ते हैं जो कि स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो, जिसको हम उर्दू, अरबी और फारसी में कहते हैं अकरब, और इसका जो अरसा है, इसका जो दौरानिया है 24 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक का है। इसका मतलब यह है कि जो बच्चे या बच्चियां, जो ख़वातीन हज़रात इस अरसे में पैदा हुए या होते हैं या होंगे, उनका बुर्ज जो है वो अकरब होगा, स्कॉर्पियो होगा। और इसका जो हाकिम सैयारा है वो है मरीख, मार्स। और जो नाम बच्चों के रखने चाहिए वो जो मंसूबात होती हैं ना, उनसे रिलेट जब करें, जो हरूफ मंसूब हैं उनसे करके रखें तो बड़ा अच्छा रिजल्ट रहता है ओवरऑल ज़िंदगी में। नून और ये के साथ नाम रखने चाहिए जो बुर्ज अकरब से रिलेटेड बच्चे या बच्चियां हैं। और नाम अगर आपने सही रख दिया तो आप समझ लें कि ज़िंदगी के 30, 40, 50% जो मसले हैं ना वो फिर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते। और दिन जो मंसूब है वो है मंगल दिन। सारे मेरे रब के बेहतरीन दिन हैं, मंगल का दिन इससे मंसूब है। और जो लकी नंबर आप कह सकते हैं अकरब वालों का वो है 9। और सुर्ख रेड और ब्रिक रेड, किरमजी रंग जो है वो स्कॉर्पियो वालों के लिए बड़ा अच्छा रंग कंसिडर किया जाता है। आप उसको पहनते हैं, आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी शख्सियत के ऊपर बड़ा गहरा पॉजिटिव मस्बत असर जो है वो आता है। और रंग जो होते हैं ना वो बहुत सारी आपकी जो ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी जो बीमारियां, परेशानी हैं उनको, उनके ऊपर भी बहुत गहरा असर रखते हैं। तो जो स्कॉर्पियो वाले हैं वो सुर्ख रंग या किरमजी रंग जो है उसको इस्तेमाल किया करें। मरजान और गार्नेट जो है वो आपके जेमस्टोन्स हैं जिनको पहनने से आपकी बॉडी एनर्जीज जो हैं वो ठीक होती हैं। इस बात को जहन में बिठा लीजिए कि पत्थर जो है वो तकदीर को चेंज नहीं कर सकते। ऐसा सोचना, समझना, मानना, यकीन करना बिल्कुल शिर्क है, बिल्कुल गलत है। मतलब बॉडी एनर्जीज ठीक हैं, आपकी जिस्मानी तवानाइयाँ ठीक हैं, ज़हनी क़ुव्वत ठीक होती है, फैसले अच्छे होते हैं, फिर अल्टीमेटली जो चीज़ें हैं वो अच्छी हो जाती हैं। तो फिर हम कहते हैं जी ये हमने पत्थर पहना तो, हालांकि इसमें शिफाई अनासर जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शामिल किए हैं। 12 बढ़ते हैं आपके इस वीक की जो कैलकुलेशन है उसके अंदर ये है कि जो सबसे पहले मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि मुलाजमत से रिलेटेड जो मसाइल आपके चलते हुए आए हैं पिछले चंद हफ्तों में, वो जो हैं बेहतर तौर पे हल भी हो सकेंगे और वो किसी अच्छे रिजॉल्व की तरफ जाते हुए नजर आते हैं।
ठीक है। और ज़हन जो है वो आप समझ लें कि मुलाजमत पेशा अफराद जो हैं ज़हनी तौर पे वो पुरसकून रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर जो लोग कारोबार से रिलेटेड हैं, ख़ास तौर पे जो बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर, उनके लिए ये है कि कारोबार तो वुसअत इख्तियार करेगा, मगर ज़हनी सुकून और ज़हनी दबाव जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है, ज़हनी दबाव कॉम्प्रोमाइज मतलब वो बढ़ जाएगा। प्रेशर तो पहले ही होता है, आपको पता है इसका कारोबार का, मगर जब आप शिरकत में कारोबार कर रहे हैं तो इस हफ्ते शराकती कारोबार करने वाले जो हैं उनके प्रेशर्स बढ़ते हुए नजर आते हैं। बहरहाल माली पोजीशन जो है वो बेहतर रहेगी आप लोगों की, चाहे आप कारोबार में हैं या आप मुलाजमत में हैं, छोटे स्केल का काम कर रहे हैं, बड़े स्केल का कर रहे हैं, मीडियम स्केल का कर रहे हैं, माली पोजीशन जो है वो इस हफ्ते में इंशाल्लाह बेहतर रहेगी। और इस हफ्ते में आप कह लें कि जो साइकोलॉजी है ना, आपकी जो नफ्सियात है, वो उसको बड़ा बैलेंस आपने रखना है, क्योंकि खास तौर पे वो मैंने जो अफराद बताए ना कारोबारी अफराद हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों में डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो उसमें यह है कि बिल्कुल सुकून से आपने बैठ जाना है, सोचना है, किसी दोस्त की, करीबी अजीज की जो बहुत क्लोज है उसकी राय लें, मशवरा लें और फिर कोई डिसीजन करें। और उसमें ज़्यादातर जो आपको हेल्प आउट कर सकेंगे वो आपके अपने जो घर वाले अफराद हैं, उनमें आप देखें कि कौन आपको बेहतरीन मशवरा जो है वो दे सकता है, या फिर आपका कोई बचपन का दोस्त जो है वो आपको अच्छी मशावरत देगा और उस चीज़ से अल्लाह की मेहरबानी से बाहर निकाल लेगा। वरना फिर ये है कि अगर आप इसको स्ट्रेस को अपने जहन पे लोड कर लेंगे तो फिर दूसरों के साथ ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा मतलब हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। और बाकी ये है कि बैरून मुल्क का सफ़र आपका जो है वो जो हमने प्लान किया हुआ है इस हफ्ते में वो होता हुआ नज़र आता है अल्लाह की मेहरबानी से। और आप पूरे मतलब तरीके से फिर जो है अगर चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे तो आप एक्सप्रेस करते हुए भी नज़र आएंगे, ख्यालात को, जज्बात को, जो अंदर हैं चीज़ें वो आप करते हुए नज़र आएंगे। अच्छा, जो लोग लेना चाह रहे हैं ना, नई सवारी खरीदना चाह रहे हैं, बाइक है, नई गाड़ी है, इस मतलब जो सवारी नहीं लेना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो वाले, उनके लिए अच्छा वीक है। जो हाउस होल्ड से रिलेटेड हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं, हाउस वाइफ्स जो हैं, उनके लिए ये है कि उनको उनके शरीके हयात का ताउन जो है वो रहेगा इस वीक में। बच्चों के मामलात में, बच्चों के मामलात, तालीम के मामलात हैं, बच्चों की शादियों के मामलात हैं, उसमें फुल कोऑपरेशन जो है वो आपको आपके या आपकी लाइफ पार्टनर की मिलती हुई नजर आती है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, इसके अलावा सदका जो मैं अर्ज करता हूँ, सदकात आपने जो देने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मुस्तहिकीन को दिया कीजिए और मुस्तहिकीन में अपने बहन भाइयों को देखें, कज़न्स, रिश्तेदार, अजीज़, दोस्त अहबाब, महल्लेदार, उनको देखें। और आप सदका जो दे सकते हैं उसकी मैं एक लिस्ट आपको बता देता हूँ, और आप ये कीजिए कि उस लिस्ट के अंदर से अगर तो सारी इस्तेदाद आप रखते हैं या रखती हैं तो वो दें, वरना कोई एक चीज़ आप सिलेक्ट कीजिए और वो अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए दें। क्योंकि सदका जो है ना वो बलाओं को टालता है, यहाँ तक कि मौत तक को टालने की कुव्वत अल्लाह ने इसमें रख छोड़ी है। तो आप जो सदका दे सकते हैं या दे सकती हैं वो गंदम, काला गुड़, दाल मसूर, बड़ा गोश्त, सुर्ख कपड़ा, सरसों का तेल दे सकते हैं, फिर जिंदा जानवर जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप दें और जिसको भी दें इज़्ज़त एहतराम के साथ हम्बल तरीके से उसकी खिदमत में पेश करें। और इसके अलावा मैं बताता हूँ कि आपने करना क्या है इस वीक में। एक तो वही वाली बात है कि मेडिटेशन जो है, दुरूद शरीफ पढ़ें, मेडिटेट करें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर दुरूद व सलाम भेजा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हम वक्त यही अमल करने में मसरूफ़ है। खूबसूरत तरीन अमल है इस कायनात का, और जो कायनात वाला है वो भी ये कर रहा है। तो इसके अलावा अपना ताल्लुक़ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ वो स्ट्रॉन्ग बनाएं और स्ट्रॉन्ग करें।
اس پہ اپنا یقین، اعتقاد، اعتماد اور زیادہ بہتر کریں، اپنی عبادات کو مکمل رکھیں، جس مسلک سے بھی آپ کا تعلق ہے سجدہ ریز ہوں اللہ رب العزت کے آگے، دعائیں کریں، اور پڑھنے کے لیے جو ہے آپ نے یا معزو یہ آپ نے تسبیح جو ہے یہ کرنی ہے ہر نماز کے بعد، ایک تسبیح پڑھیے اور اللہ رب العزت سے دعا کریں اپنے جو بھی جملہ معاملات ہیں ان کے لیے، اور پھر ان کی قبولیت کو بھی ہوتے ہوئے دیکھیں، کیونکہ یہ ویک جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے، پوری کائنات کے لیے اللہ نے کوئی بھی وقت قبولیت کا ہوتا ہے، دعا کرتے رہا کریں اور اللہ کی رحمت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ویورز، اب ہم بڑھتے ہیں سیجیٹیریس کی طرف، جس کو ہم عربی، اردو، فارسی میں کہتے ہیں قوس، اور اس کا جو عرصہ ہے قوس کا وہ 23 نومبر سے شروع ہو کر 21 دسمبر تک رہتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عرصے میں جو بچے بچیاں، مرد حضرات، خواتین جو بھی پیدا ہو رہے ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ برج قوس کے ساتھ، جس جنڈر سے بھی آپ کا تعلق ہے۔ اور برج قوس کا جو حاکم سیارہ ہے مشتری، جوپیٹر، بزرگ ترین سیارہ، معلم سیارہ، گرو اس کو کہا جاتا ہے ہندی جو ویدک ایسٹرالوجی اس کے اندر، اور اس سے جو منسوب حرف ہے جس سے آپ نے نام رکھنا ہے بچے یا بچی کا، وہ ہے ایف، فے، ٹھیک ہے۔ اور نام جو ہے نا، میں اس لیے بتاتا ہوں کہ نام کا اثر بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کے اوپر، اور کئی لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ فون پوچھ رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں کہ جی یہ پرابلم آ رہی ہے، نام بتائیں، یہ پرابلم آ رہی ہے، نام کا صحیح کا بتائیں، تو جو میری جو علمی استعداد ہے، جتنی میری توفیق ہے، میں اس حساب سے گائیڈ کر دیتا ہوں۔ پر سیجیٹیریس میں نام جو ہے وہ فے آپ رکھا کریں، فے سے رکھا کریں، اور جو دن منسوب ہے مشتری سے یا سیجیٹیریس سے وہ جمعرات ہے، ٹھیک ہے۔ اور دن دیکھیں سارے بہترین ہیں، مگر ایک سیکوینس قدرت نے بنائی ہوئی ہے، ہر دن کے اوپر ایک حاکم سیارہ ہے، اور مشتری اس کا حاکم سیارہ ہے، ہر دن منسوب ہے ہر برج کے ساتھ، تو جمعرات کا دن۔ لکی نمبر اس کا جو ہے وہ 3 ہے، نمبر 3، اور جو اس کا کلر ہے بیسیکلی وہ ہے سبز رنگ، سبز ڈارک سے لے کے لائٹسٹ گرین جو ہے وہ آپ استعمال کریں، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے پروان چڑھتی ہے۔ رنگوں کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے انسان کی زندگی پہ، اس کے کردار پہ، اس کی صحت پہ، اعمال پہ، بہت بہت گہرا اثر ہوتا ہے رنگوں کا۔ اور جو پتھر ہے وہ آپ عقیق بھی پہن سکتے ہیں، عقیق آپ یمنی براؤن پہن سکتے ہیں، یلو عقیق پہن سکتے ہیں، اس کے علاوہ بلیک عقیق جو ہے وہ پہن سکتے ہیں، فیروزہ پہن سکتے ہیں۔ فیروزہ بیسیکلی جو ہے وہ روحانیت سے ریلیٹڈ ایک جیم سٹون ہے۔ یہ جو لوگ ہیں نا سیجیٹیرینز، یہ چونکہ ان کا تعلق مشتری کے ساتھ ہے، روحانیت پسند ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو یہ ہفتہ بھی جو ہے روحانیت کی جو شوقین حضرات ہیں، خواتین ہیں، جن کا تعلق برج قوس کے ساتھ ہے، یعنی مشتری کے ساتھ ہے، اس ہفتے میں بھی وہ جد و جہد کرتے ہوئے نظر آئیں گے روحانی لحاظ سے کچھ چیزوں کے حصول کے لیے، اور بہت حد تک ممکن ہے کہ یہ حصول اللہ تعالیٰ ان کو کروا دے، وہ چیزیں حاصل ہو جائیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں بہت عرصے سے ریاضتیں، مشقتیں جو ہیں وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس ہفتے میں بہت سارے جو قوس افراد ہیں، خواتین ہیں، ان کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، دوسری بات میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو ہفتہ ہے اس میں جو محبت کے معاملات ہیں اس میں آپ کو مصروفیت رہے گی، اور قسمت آپ کا ساتھ بھی دے گی انشاءاللہ۔ اور دوسرا جو کاروباری افراد ہیں، کاروباری خواتین ہیں، حضرات ہیں، اس ہفتے میں ان کا جو نصیب ہے وہ پچھلے ہفتوں کے مقابلے میں بہتر طریقے سے یاوری کرتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ جو لوگ ملازمت تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، نئی ملازمت لینا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ویک بہت بہتر ہے اس لحاظ سے کہ نئی ملازمت کا حصول ممکن نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ملازمت بہتر طور پہ چیزوں کو چینج کرنے کے لیے تبدیلی میں جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ویک جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہے۔ سفر جو ہے سیجیٹیرینز کے لیے وسیلہ ظفر ثابت ہوگا انشاءاللہ، چاہے آپ اندرون ملک کریں یا بیرون ملک کریں، وہ سفر جو ہے آپ کا انشاءاللہ وہ بہترین رہے گا۔
उसका रिजल्ट जो है बड़ा पॉजिटिव आएगा इंशाल्लाह ताला। और दूसरा ये है कि सिर्फ आपने जो फालतू जो बहस है, तमहीस है, एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग है, इससे बचना, वरना नेगेटिव साइड इस वीक की ये है कि डिप्रेशन में इजाफा होता हुआ नजर आता है, खुदा ना खास्ता। इन चीज़ों से बचें। अच्छा, जो ख़वातीन हैं हमारी, जो बहनें हैं, उनको ससुराल से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो पेश आ सकते हैं। मतलब ये है कि ससुराल में जो रिफ्ट्स होती हैं, यानी आप समझ लें नंद के साथ हो गई, बावज के साथ हो गई, ये प्रॉब्लम आ गई है, इससे आपने बचना है, इसको आपने अवॉइड करना है। और आप अवॉइड ऐसे कर सकते हैं कि आप फालतू जो बहस मुबहस है उसके अंदर आए ही ना, आप उसके अंदर जो है अपना हिस्सा डालें ही ना, किसी की बात सुने, अगर आपको बुरी लग रही है उसको अवॉइड करें, इग्नोर करें, ये इसका तरीका है। अच्छा, दूसरा सदकात जो हैं वो मैं आपको अर्ज किए देता हूँ कि सदकात आपने क्या करने हैं। सदकात नॉर्मली दिए जाते हैं, जो मुस्तहिकीन होते हैं ना उनको देते हैं सदकात। और मुस्तहिकीन हम सब जानते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। मुस्तहिकीन में आ जाते हैं हमारे सगे बहन भाई भी हो सकते हैं, हमारे अजीज़ व अकारब भी हो सकते हैं, हमारी सहेलियाँ, हमारे दोस्त, मतलब ये सब हो सकते हैं। हमारी सहेलियाँ से मुराद यहाँ पे ये है जो ख़वातीन हैं, कॉस वेजिटेरियंस, उनकी सहेलियाँ, और जो मर्द हज़रात उनके दोस्त हैं, महल्लेदार हैं। फिर उसके बाद दायरा कार जो है वो वसी होता है, वहाँ पे सदका दें। और जिसको भी सदका दें बड़े इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, उसको एहसास दिलाए बगैर सिर्फ बता दें उसको कि जनाब ये सदका है। क्योंकि सदका जो है जब तक आप बताएंगे नहीं उसका वो असर कायम नहीं होगा कि सदका जो है वो रद्द बला है ना, बलाओं को टालता है। उसके अलावा इसमें इतनी कुव्वत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है कि ये मौत तक को टाल देता है। तो उसको जिसको भी देना है आपने वो बता के दीजिए। और दूसरा ये कि आप चने की दाल, सुर्ख शक्कर, सुनहरी कपड़ा, नमक, नकद रकम, बड़ा गोश्त, जिंदा जानवर, ये सारी चीज़ें अगर अल्लाह ने आपको तौफीक इस्तेदाद अता फरमाई है तो ये दीजिए, वरना कोई एक चीज़ अपनी तौफीक इस्तेदाद के हिसाब से जो है वो सिलेक्ट कर लें और वो सदके में दे दें। कबूल करने वाला अल्लाह पाक है, वो नियतों को देखता है, वो क्वांटिटीज़ को नहीं देखता। अच्छा, अब इसके अलावा हमने देखना ये है कि हमने इस वीक में पढ़ना क्या है। आपका ताल्लुक जिस मसलक के साथ भी है, जिस मजहब के साथ भी है, मैं कहूँगा अपने क्रिएटर गॉड अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना राब्ता, अपना लिंक जो है वो स्ट्रॉन्ग रखें। क्योंकि देखें, दुनिया में लाने वाला वो, दुनिया में चलाने वाला वो, दुनिया से लेके जाने वाला वो, और आगे काम आने वाला अल्लाह। तो उसके साथ बना के रखें। और दूसरा ये कि अपनी जो इबादत हैं उनको इंटैक्ट रखें, मेडिटेशन करें, दुरूद और सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भेजते रहें। क्योंकि ये वो काम है, खूबसूरत काम है, जो मेरा आपका प्यारा रब हर वक्त हम वक्त अपने फरिश्तों के साथ करने में मसरूफ़ है। और इसके अलावा अपनी जो नमाजें हैं उनको इंटैक्ट रखें, नमाजें अपनी प्रॉपर रखें। और आपने पढ़ना जो है इस वीक के अंदर ये कीजिए कि इशा की नमाज के बाद 1100 मरतबा आप पढ़िए या रहीमो या अल्लाह हो, 1100 मरतबा पढ़िए। और ये करें कि इशा की नमाज अदा कर लें, उसके बाद वहीं पे बैठे रहें, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें पहले, 11 मरतबा बाद में, और दरमियान में 1100 मरतबा या रहीमो या अल्लाह हो, इसकी तस्बीह जो है ये करें, इसको पढ़ें। जी व्यूअर्स, अगले ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम उर्दू, अरबी, फारसी में कहते हैं जद्दी। और इसका जो अरसा है वो 22 दिसंबर से शुरू होता है और 20 जनवरी तक रहता है। 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक जो लोग पैदा होते हैं उनका ताल्लुक बुर्ज जद्दी के साथ होता है। इसका हाकिम सैयारा जो है वो ज़ुहल है और ये खाकी बुर्ज है, यानी इसका जो एलिमेंट है वो अर्थ है। और जो हरूफ जिनसे आप कैप्रिकॉनियंस के नाम रखें, जो बच्चे या बच्चियाँ इस बुर्ज के तहत पैदा हों, वो हरूफ नोट कर लीजिए। जे, जाल, जोए, गाफ,
سین اور جیم. ٹھیک ہے جی, یہ حروف ہیں. نام جو ہے سوچ سمجھ کے رکھیں جب بھی نومولود ہو, بچہ یا بچی پیدا ہو, کیونکہ نام کا جو اثر ہے وہ زندگی کے بعد تک رہتا ہے. اور اگر اچھا نام رکھ لیا جائے تو بہت ساری غیر ضروری جو مصیبتیں, مشکلات, مصائب ہیں, اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. اچھا, اس سے منسوب جو دن ہے وہ ہفتے کا دن ہے. دن یاد رکھیے گا, سارے اللہ تعالیٰ کے بہترین دن ہیں, مگر ہفتہ اس سے منسوب ہے, ذہول سے بھی اور کیپریکون سے بھی. اور رنگ جو ہیں جو آپ پہنیں یا استعمال کریں اور آپ کی شخصیت کو چار چاند لگ جائیں پازیٹیو انداز سے, وہ خاکی رنگ ہے, نیلا رنگ ہے یا سیاہ رنگ ہے. یہ رنگ اگر آپ استعمال کرتے ہیں, آپ رزلٹ جو ہے آپ کی شخصیت کے اوپر بہترین جو ہے وہ آتا ہے. تو یہ رنگوں کا استعمال ضرور کیا کریں, کیونکہ رنگ جو ہے قدرت نے بغیر, قدرت کا تو خیر کوئی کام جو ہے وہ کسی لاجک کے بغیر نہیں ہے. تو یہ ہے کہ یہ رنگ جو ہے یہ استعمال کیا کریں, اچھا امپیکٹ آتا ہے شخصیت کے اوپر. اور سیاہ, عقیق اور نیلم اگر آپ پہننا چاہیں اپنی باڈی انرجیز کو ٹھیک کرنے کے لیے تو ضرور پہنیں. تقدیر بدلنے کے لیے اگر پہنیں گے تو بالکل نہ پہنیں, کیونکہ یہ تقدیر نہیں تبدیل کرتے. یہ یاد رکھیں کہ صرف آپ کو ہیلنگ جو ہے نا انرجیز وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا, اب ہم جناب بڑھتے ہیں آپ کے اس ہفتے کی کیلکولیشن کی طرف. جن لوگوں نے کوئی انعام لینا, انعام ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, پرائز بانڈ لیے ہوئے ہیں, لاٹریز جو لوگ کھیلتے ہیں پاکستان سے باہر یا پاکستان میں پرائز بانڈز لیے ہوئے ہیں, ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ پازیٹیو ہے اس لحاظ سے. تو آتے آپ کو گڈ نیوز دے دی نا میں نے کہ روپے پیسے کے حساب سے. اچھا, پھر جنہوں نے شارٹ انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں کیپریکون والوں نے, ان کے لیے یہ بھی بہت زبردست ہے. شارٹ انویسٹمنٹس جو ہیں ہماری جو مائیں, بہنیں, بیٹیاں ہیں, وہ شارٹ انویسٹمنٹس ان کی ہوتی ہیں کہ وہ محلے میں اپنے حلقہ واقفان جو ہیں ان کے اندر وہ ڈالتی ہیں, کمیٹی ڈال لیتی ہیں یا کوئی چیز خرید لیتی ہیں, گولڈ کی کوئی چیز لے لیتی ہیں. تو یہ بیسٹ ٹائم ہے ان کے لیے اس طرح کرنے کا. جو کاروبار سے منسلک افراد ہیں کیپریکونز, ان کے لیے یہ ویک جو ہے اسٹریٹجی بنانے کا ویک ہے. اس ویک میں کوئی انویسٹمنٹ ایسی نہ کریں کہ جو آپ کو لمبا پھنسا دے. پہلے بھی دیکھیں انویسٹمنٹس آپ نے کی وہ ابھی تک سٹک ہیں, تو اس ویک میں بھی کوشش نہ کریں, کیونکہ ابھی تھوڑا سا انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, آلدو آپ کا لنک جو ہے سیٹرن کے ساتھ ہے اور سیٹرن کا تعلق جو ہے وہ زمین کے ساتھ ہے, مگر ابھی سیٹرن جو ہے سوری میں سیٹرن کہتا ہوں, سیٹرن نہیں ہوتا لفظ, سیٹرن جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہے, الٹی چال چل رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں سیدھا ہو گیا ہے, سیدھا ہونا ویسے بھی ٹھیک نہیں ہوتا, یہ جی وہ سیدھا ہو گیا آپ کے ساتھ, یہ ریٹروگریڈ ہے. اس وقت لینڈ سے ریلیٹڈ کوئی کاروبار جو ہے وہ فائدہ نہیں آپ کو دے گا اس ویک میں بھی خاص طور پہ. تو آپ یہ کیجئے کہ تھوڑا ویٹ کر لیں, اس کے بعد اگر کوئی بائنگ کرنی ہے, سیلنگ کرنی ہے, قدرت آپ کو موقع دے گی انشاءاللہ بھرپور طریقے سے. اس ہفتے میں جو ہے نا ملازمت پیشہ افراد, ان کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. بیک سیٹ پہ جا کے پلان کر کے چیزوں کو نئی انرجی کے ساتھ اچھی انپوٹس دیتے ہوئے اپنی اپنی جابز کے اندر کیپریکونینز آپ کو میل ہیں یا فیمیل وہ نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں, یہ ہوگا کہ جسمانی کمزوری کا یا ذہنی کمزوری کا یا تھکاوٹ, آپ کہہ لیں کمزوری نہیں, تھکاوٹ کا احساس ہوگا, کیونکہ اس ہفتے میں آپ لوگ ایگزرٹ کرتے ہوئے زیادہ نظر آتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اس ہفتے میں بہت سارے آپ کے جو بگڑے ہوئے کام ہیں اللہ تعالیٰ وہ سنوارتا ہوا نظر آتا ہے, اور دوست رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ بھی ریلیشنز آپ کے بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. بلکہ آپ کو میں ایک بات یہاں پہ یہ بتاؤں کہ جو کیپریکونینز ہیں, میل ہیں یا فیمیل ہیں, ان کے جن کے رشتہ دار تھوڑے سے ڈسٹنس پہ ہو گئے, ناراض ہو گئے, وہ اس ہفتے ری یونین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بڑی اچھی ایک انپوٹ نیوز کیلکولیشن جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اللہ تعالیٰ بہت اچھا کرے گا اس معاملے میں انشاءاللہ. ہاؤس وائف جو ہیں وہ مثال کے طور پہ اگر ان کو
ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जिन खास तौर पे खवातीन को इश्यूज हैं कैप्रिकॉर्न वाली, उनको गुस्से और जज्बात के ऊपर कंट्रोल करके अपनी मेडिकेशन को चेंज करना चाहिए। जो चीजें काम नहीं कर रही हैं आपकी मेडिकेशन में, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीजें, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड चीजें, उसमें आपने मेडिकेशन को चेंज करना है, डॉक्टर को चेंज कर लें, सेकंड ओपिनियन ले लें, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं शादी और ये जो मोहब्बत से रिलेटेड मामलात हैं। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए ये वीक इस लिहाज से एक मीडियोकर वीक है, दरमियाना, कि ना कोई हालात बहुत अच्छे होने जा रहे हैं रोमांस मोहब्बत रिलेशन से रिलेटेड, या बहुत ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं। एक बैलेंस जो है हफ्ता है इसके हाथ से। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सदकात की। सदकात हमेशा यही आपसे अर्ज़ की, मुस्तहिकीन को दें, अपने बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, महल्लेदार, ये मुस्तहिकीन में आते हैं। इसके बाद फिर इस दायरे से बाहर जाइए। आप सदके में दें काले माश, काले तिल, काला कपड़ा, सरसों का तेल, गोश्त और स्याह जानवर। पूरी लिस्ट आपके सामने, जो आप दे सकें, जो इस्तेदाद आपकी, जो तौफीक अल्लाह ने आपको दी, वो दें। सदका जो है याद रखिएगा बलाओं को टालता है, रद्द बला भी है, यहाँ तक कि मौत तक को टालने की कुव्वत मेरे प्यारे अल्लाह ने इसके अंदर रखी हुई। अब हम आते हैं जनाब इस हफ्ते के लिए वजीफा या तस्बीह क्या है। देखें, आपने सबसे पहले तो ये बात ये रखिए कि हम लोग जो हैं वो इंसान हैं, और पूरी इंसानियत को तालीम जो है वो सलामती की ही दी गई है। कोई भी मजहब है, ठीक है, इस्लाम तो बिलखुसूस सलामती से रिलेट करता है ना। अच्छा, आपने अपने कॉन्टैक्ट को, अपने रिलेशन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बिल्कुल इंटैक्ट रखना, बेहतरीन करना, क्योंकि उसके साथ ताल्लुक अच्छा किए बगैर कोई एक सेकंड जो जिंदगी का ना वो सही नहीं गुजर सकता, जिंदगी के बाद का भी कोई सेकंड सही नहीं गुजर सकता। तो प्लीज उसके साथ अपना रिलेशन ठीक रखें, ऐसे अमल करें कि वो आपसे राजी हो जाए, उसके बंदों को, उसकी मखलूक को प्यार करें, ख्याल करें उनका। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि आपने अपनी नमाजें, इबादत जो है वो इंटैक्ट रखनी है। आपने हर नमाज के बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ना है, और आपने पढ़ना है जनाब या वारिसो। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या अल्लाह हो या वारिसो, या अकेला या वारिसो भी पढ़ सकते हैं। हर नमाज के बाद जो है तस्बीह आप करें, अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह ताला की रहमतें समेटें। जी व्यूअर्स, अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस की तरफ बढ़ते हुए मैं ये अर्ज करूंगा कि एक्वेरियस जो है इसको हम उर्दू, अरबी और फारसी में कहते हैं दलौ या दलव, और इसका जो अरसा है वो 21 जनवरी से 19 फरवरी तक का नॉर्मली कंसिडर किया जाता है, और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो यूरेनस है। वैसे तो ज़ुहल ही है, मगर जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी 100-150 साल पहले आई उसमें यूरेनस और नेपच्यून वगैरह जो हैं वो आ गए। अच्छा, तो इससे मंसूब जो हरूफ हैं, जो बच्चों या बच्चियों के नाम रखने हैं जो इस अरसे में पैदा हुए एक्वेरियंस हैं, वो आपने रखने हैं सीन, शीन, से और स्वाद से। नाम का याद रखिएगा, बड़ा गहरा असर होता है लाइफ के ऊपर, और वो जिंदगी में तो रहता है, जिंदगी के बाद तक रहता है। उसका असर कैसे रहता है कभी उसके ऊपर करूंगा डिटेल से आपके साथ बात इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर। और इससे जो मंसूब दिन है वो हफ्ता है। दिन याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे बेहतरीन बनाए हैं, मगर हर दिन के साथ एक ज़ोडिएक साइन को, एक प्लैनेट को अटैच किया है, तो इसका दिन है हफ्ता। इसका जो लकी नंबर आप कह सकते हैं वो 4 है, नंबर 4। और दूसरा इससे जो मंसूब रंग है वो ब्लू है, नीला। नीला डार्क भी हो सकता है, मिड नीला भी हो सकता है, हल्का नीला भी हो सकता है, नीला, ठीक है। इसको पहनने से ही होगा या इसको इस्तेमाल करने से ही होगा कि जिंदगी के ऊपर इंशाल्लाह अच्छे असरात मुरतब होना शुरू होंगे। खासतौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक एक्वेरियस से है, वो स्ट्रेस के इश्यूज का शिकार हैं, उनको चाहिए कि वो ब्लू कलर का ड्रेस जो है वो रात को सोते वक्त अगर पहनते हैं
बहुत सारी हैं कलर थेरेपीज, मगर उसमें एक शॉर्ट सी टिप मैं आपको टोटका ये देता हूँ, बताता हूँ कि अगर आप स्ट्रेस का शिकार हैं तो आप ये कीजिए कि नीले रंग का कोई ड्रेस, मेल है या फीमेल है, वो पहन के आप उसमें कोशिश करें कि कॉटन का जो है ना वो ड्रेस होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो जेम स्टोन है वो लाजवर्द या नीलम जो है वो आप पहन सकते हैं या पहन सकती हैं जिस्मानी तवानाइयों को बेहतर करने के लिए, हीलिंग पर्पसेस के लिए पहन सकते हैं। लक का कोई फैक्टर नहीं है उसके अंदर। अगर हम कहें ना कि लक जो है वो बड़ी बेहतर हो जाती है, बेहतरीन हो जाती है, लक नहीं चेंज कर सकते पत्थर। अच्छा, इसका जो है ना एलिमेंट वो एयर है, हवा से ताल्लुक है इस बुर्ज का, एक्वेरियस का। वैसे तो एक्वा का मतलब वाटर होता है, मगर एक्वेरियस इज हैविंग एन एलिमेंट ऑफ एयर, हवाई बुर्ज है। अच्छा, अब आपकी जो कैलकुलेशन है उसकी तरफ चलते हैं हम। आप कोई ठोस किस्म के मुस्तहकम फैसले करते हुए अफराद नजर आते हैं एक्वेरियंस, खवातीन हैं या मर्द हजरात हैं, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड हैं, चाहे आपकी वो माइग्रेशन से, शिफ्टिंग से, ट्रेवलिंग से, कोई भी फैसला एजुकेशन से रिलेटेड है, ये वीक जो है ठोस फैसले करवाएगा और उससे दूर रस जो नतायज हैं पॉजिटिव वो आते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बाकी ये है कि इज्जत और वकार में अल्लाह ताला इजाफा फरमाएगा इंशाअल्लाह। और जो है ना स्टूडेंट्स खास तौर पे उनको उनके टीचर्स की कोऑपरेशन जो है वो मिली रहेगी, बहुत हेल्प रहेगी टीचर्स की तरफ से आप लोगों को। किस्मत जो है वो आपकी यावरी करती हुई नजर आती है, खास तौर पे जो जॉब सीकर्स हैं उनके लिए ये हफ्ता बहुत जबरदस्त है। ओवरसीज जॉब सीकर्स खास तौर पे मैं कहूंगा, ओवरसीज का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान से जो सीकर है, दुनिया में जहां जहां पे भी लोग बैठे हैं, एक्वेरियंस हैं, हमारी जबान समझते हैं, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए ये है, चाहे आप अफ्रीका में रहते हैं और आप अमेरिका आना चाहते हैं, अमेरिका में रहते हैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं जॉब के सिलसिले में, पाकिस्तान रहते हैं तो बाहर जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान से जॉब के सिलसिले में, एक्वेरियस हैं तो बहुत अच्छा हफ्ता है आपके लिए। बहुत सारी ऑफर्स पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी और खास तौर पे वो ऑफर्स जिनका आपको पिछले 3-4 माह से इंतजार था वो आपको पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी इंशाल्लाह इस वीक के अंदर। और फिर ट्रैवल प्लान करेंगे और आप लोगों के लिए अल्लाह ताला बेहतरी वाले मामलात करेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक बात आपने ध्यान रखनी है एक्वेरियंस ने, आप सरमायाकारी जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, शॉर्ट टर्म करें या लॉन्ग टर्म, उसके अंदर आपने सोच समझ से काम लेना है, एहतियात करनी है। अच्छा व्यूअर्स, मैं एक बात आपको यहाँ बताता हूँ, ये फ्लक्चुएशन आप जो देख रहे हैं ना, ये लाइट जो है हमारे प्यारे पाकिस्तान में जो मामलात होते हैं वही चल रहे हैं, कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, अनबैलेंस्ड है, तो आपने प्लीज बुरा नहीं मानना इस चीज का। अच्छा जी, अब जो है ना स्टूडेंट्स, वो तो खैर मैंने बता दिया कि प्लान आप कर रहे हैं। जो हमारी है ना हाउस वाइफ्स, बहनें, माएँ, बेटियां जो हाउस वाइफ्स का रोल प्ले कर रही हैं अपनी जिंदगी में अपने शरीका हयात के साथ, उनके लिए यह है कि सफर के मौके, खास तौर पे वो हाउस वाइफ्स जिन्होंने आप पिछले समझ लीजिए 1 से 1.5 साल से प्लान किया हुआ था अपने लाइफ पार्टनर्स, बच्चों के साथ मिलके इमिग्रेशन माइग्रेशन का, एक्वेरियंस की मैं बात कर रहा हूँ, हाउस वाइफ्स की, उनको ट्रेवल के मौके, बहुत सारे जो प्लान्स हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड हाउस वाइफ्स के लिए खासतौर पर बात कर रहा हूँ, उनके मेच्योर होते हुए नजर आते हैं इंशाल्लाह ताला। ट्रैवल के प्लान्स, आगे ट्रैवल आपका खुल रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सेहत की। सेहत जो है एक्वेरियंस की, आपने अपनी आंखों का और शोल्डर से जो रिलेटेड मामला हैं, नेक से जो रिलेटेड मामला हैं, उनका बहुत ख्याल रखना, ठीक है। अगर कोई पेन या कोई स्ट्रेस या कोई खिंचाव फील होता है तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर के साथ रब्ता करें। और यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि जो ब्लू कलर है उसको भी पहने रखें, जैसे मैंने आपको बताया रात के वक्त पहन लें, दिन के वक्त पहन लें, वो चीज़ भी बहुत फ़ायदा देगी आपको इंशाल्लाह ताला। सदकात की तरफ आते हैं जनाब, कि सदकात आपने क्या देने हैं, किस तरह से सदकात जो है ना, देखें मुस्तहिकीन का मैं हमेशा कहता हूँ, बड़े लोग हैं हमारे इस पाकिस्तान में, दुनिया में भी, जो
पॉवर्टी लाइन, जो खत गुर्बत जिसको कहते हैं, खत का मतलब लाइन, उससे जो नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं बहुत सारे करोड़ों लोग हैं पाकिस्तान में भी। तो मुस्तहिकीन देखें, हमारे सगे बहन भाई भी हो सकते हैं, हमारे कोई अजीज रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे कोई दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं, महल्लेदार भी हो सकते हैं, सफेद पोश लोग हो सकते हैं जो नहीं बताते। तलाश करें, ढूंढें, इज्जत के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, हम्बल तरीके के साथ, उनकी खिदमत में जो भी आपकी तौफीक है वो मैं अर्ज करता हूँ क्या देना वो पेश करें। उनको कहें कि जनाब ये है, और जताना नहीं जिंदगी में आपने कभी दोबारा, और सदका बता के दीजिए, क्योंकि सदका जो है वो जब बताए बगैर देंगे वो काम नहीं रखेगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि सदका जो है ना वो रद्द बला है, मौत तक को भी टालने की कुव्वत मेरे अल्लाह ने उसमें रखी है। तो आपने जनाब अली काले माछ, काले तेल, काला कपड़ा, उसके बाद सरसों का तेल, गोश्त या स्याह जानवर जो है ये सदके में दे सकते हैं। सारी चीजें अगर अल्लाह ने आपको रुपया, पैसा, तौफीक, इस्तेदाद, हौसला दी है, ये सब भी दे सकते हैं, वरना इसमें से कोई एक चीज सेलेक्ट करें, अल्लाह ताला के साथ कारोबार करें। अच्छा, फिर दूसरी बात आपको मैं ये बताता हूँ कि ग़िज़ाई किल्लत जो है वो है, चीज़ें महंगी हैं, अगर आप अफोर्ड करते हैं ना कुछ खाने की चीज़ें आप किसी को सदके के तौर पे दे सकें तो वो ज़रूर दे दें। पढ़ने के लिए सबसे पहले मेडिटेशन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर दुरूद सलाम भेजें। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ये इतना ज़रूरी काम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम वक्त अपने फरिश्तों के साथ करने में मसरूफ़ अमल है, तो आपने भी ये करना है। अपनी इबादत को इंटैक्ट रखें। आपका ताल्लुक जिस मसलक से, शिया हैं, सुन्नी हैं, बरेलवी, देवबंदी, सब सजदा तो अल्लाह को करते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को करते हैं। तो अपना ताल्लुक जो है अपने रब के साथ बेहतरीन करें, सब के साथ ठीक रहें, अल्लाह राज़ी रहता है। अल्लाह की मखलूक के साथ राज़ी रहें, वो आपसे राज़ी रहता है। अल्लाह की मखलूक आपसे राज़ी रहती है तो अल्लाह आपसे राज़ी रहता है। तो कोशिश करें इस तरह, क्योंकि ज़िंदगी जो है उसमें भी अल्लाह ने काम आना है। ज़िंदगी का कोई पता नहीं किस टाइम पे आप आगे चले जाएं, हम आगे चले जाएं, ज़िंदगी जो है उसमें भी, उसके बाद भी अल्लाह ने काम आना है। अल्लाह के साथ जो है अपना ताल्लुक ठीक रखें। अच्छा, नमाजें अपनी, इबादत अपनी इंटैक्ट रखें। प्लस आपने करना ये है कि या खबीरो या गफ्फारो, या खबीरो या गफ्फारो, ये आपने कॉम्बिनेशन जो है हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लें, 2 पढ़ लें, 3 पढ़ लें, जितनी आपकी तबा जो है वो आपको माइल करे इस तरफ, एक तस्बीह मिनिमम जरूर पढ़ें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। जी व्यूअर्स, अपने नेक्स्ट वीडियो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा ज़ोडिएक साइन है, एंड दैट इज पाइसेस। हौत जिसको कहते हैं, कई लोग इसको हूत भी कहते हैं। इसका जो अरसा है वो 20 फरवरी से 20 मार्च तक है। इसका मतलब यह है कि इस दौरान जो बच्चे, बच्चियां, खवातीन, हजरात, अफराद, जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक है, आप दुनिया में आते हैं, तो आपका बुर्ज जो है वो पाइसेस बनता है, हौत जो है वो बनता है। हौत का जो हाकिम सैयारा है, अगर हम कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं तो वो तो मुश्तरी है, और अगर हम मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं तो नेपच्यून है, ठीक है। और दाल और चे जो हैं वो इसके वर्ड्स हैं जिससे बच्चे या बच्चियों के नाम रखें तो सारी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है ना, बहुत सारे मामला वो चलते हैं। मतलब 100% लाइफ तो किसी की भी जो है वो बैलेंस नहीं होती। हर इंसान को परेशानी भी है, खुशी भी है, मगर नाम सही रखने से ये होता है कि बहुत सारी अनड्यू चीज़ें जो हैं वो आपकी अल्लाह ताला बैलेंस कर देता है इंशाल्लाह। अच्छा, इससे मंसूब जो दिन है पाइसेस से, वो है जुमेरात का दिन, थर्सडे। दिन सारे बेहतरीन होते हैं। समझने की ज़रूरत है कि दिन क्यों बताते हैं। इसलिए बताते हैं कि हर दिन के ऊपर एक हाकिम सैयारा या हर ज़ोडिएक साइन का ताल्लुक एक दिन के साथ अल्लाह ने किसी खास वजह की बेस पर जोड़ दिया। तो इसका दिन है जुमेरात। इसका जो लकी नंबर बनता है वो 3 बनता है, 3। और इससे जो रिलेटेड कलर्स हैं वो आ जाते हैं ब्लू और ग्रीन, ठीक है। ब्लू का कोई भी शेड आप ले लें, ग्रीन का कोई भी शेड ले लें,
शेड ले लें, वो पहने। जिंदगी के ऊपर गहरे भरपूर असरात जो है ना पॉजिटिव, वो मुरतब करते हैं ये रंग। और दोनों रंग जो है बड़े ज़बरदस्त रंग हैं, हीलिंग और सेरेनिटी और डिविनिटी, बड़ा कुछ है इन दोनों कलर्स में। ये कलर ज़रूर पहना करें, ख़ास तौर पे अगर आपका ताल्लुक जो है वो पाइसेस के साथ है, या इसका जो दूसरा ज़ोडिक साइन है सेजिटेरियस उसके साथ, तो ये कलर्स जो हैं ये बड़े अच्छे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जो पत्थर है, पत्थर जो है वो तकदीर को नहीं बदलता, ये याद रखिए। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, मैं पता है आपको बताऊँ क्यों कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि मैं अपने बहन भाइयों को, अपने लोगों को देखें इस तरफ लाऊं कि तकदीर पे कादिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अब इस बात पे एतराज़ ये भी हो सकता है, करते भी हैं आप लोग, मैं आपका एतराज़ हमेशा वेलकम करता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की, कि मुझे कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी जो है हराम है। कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि एस्ट्रोलॉजी हराम है। हाँ, इसके ऊपर यकीन करना, इस पे एतकाद कर लेना, इसको अल्टीमेट मान लेना, ये हराम है, ये शिर्क है। अच्छा, अब ये एक इल्म है, मैथ्स भी एक इल्म है, कैलकुलेशन का इल्म है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, दीज आर ऑल नॉलेजेस, राइट। तो हम कई दफ़ा सही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो आंसर सही आ जाता है, ठीक है। कई दफ़ा फॉर्मूला सही अपनी तरफ से अप्लाई करते हैं, आंसर सही नहीं आता। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, एस्ट्रोलॉजी, इल्म में इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, हतमी आखिरी इल्म जो है ना वो मेरे अल्लाह का है, कुरान करीम जो है ना, वो उसको पढ़ना, समझना, उस पर अमल करना, असल काम वो है। अच्छा, अब पत्थर मैं आपको बता रहा था कि ज़र्द दकीक और पुखराज जो है वो आप पहना करें, तो बॉडी एनर्जीज जो है ना वो आपकी बेहतर होंगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, दूसरी बात, मैं आपका ये जो है ना वीक, इसकी कैलकुलेशन आपको देता हूँ, मगर उससे पहले भी एक बात आपसे मैं कहना चाह रहा था, वो ये कि ये जो होती अफराद है ना, पाइसियंस जो हैं, ये बड़े सॉफ्ट हार्टेड, बड़े ही ज़बरदस्त तरीन लोगों में शामिल हैं। मैं इनको अगर रैंक करूंगा ना, मतलब अगर आप मुझसे पूछें, तो शायद जो टॉप 3 ज़ोडिएक साइंस है ना, ये उनमें एक ज़ोडिएक साइन है। इतने हमदर्द हैं, इतने अच्छे हैं, मगर इनका एक बैड एस्पेक्ट ये है पाइसियंस का कि ये इंतकामी तौर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो खराबी कर देते हैं। जब इंतकाम में आते हैं तो बहुत खराबी कर देते हैं, और बिलो द बेल्ट जो है ना वो हिट करने में भी कसर नहीं छोड़ते। ये इनका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, जो पता नहीं कभी कंट्रोल होगा या नहीं होगा। 12 तो हफ्ते की तरफ आते हैं ना, कैसा लगता है कि हफ्ता आ सकता है आगे पेश। शख्सियत जो है उसमें इंशाल्लाह निखार ही रहेगा और मस्बत रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। शख्सियत खिली नजर आएगी इस हफ्ते में। जो लाइफ पार्टनर्स हैं उनके साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर उनका रिजॉल्व भी जो है वो इसी हफ्ते में, मतलब लड़ाई होगी इसी हफ्ते में, जो है वो ठीक भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और छोटी छोटी जो है ना गलत फहमियाँ वो ना आने दें अपने बीच में, उसकी वजह से मसाइल जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं इस वीक में। तो कोशिश करें कि मसाइल जो हैं उनको बैठ के आप रिजॉल्व कर लें। उसके बाद कुछ ख्वाहिशात ऐसी हैं जो बड़े अरसे से चली आ रही हैं, वो इस हफ्ते में से कुछ ख्वाहिशात जो है सारी नहीं, एकदम ये नहीं होगा जनाब ऐसे आप उठे और आपकी ख्वाहिशात जो है वो पूरी हो गई सारी, नहीं, इट विल नॉट हैपन लाइक दिस। बट व्हाट इज इंशाल्लाह गोइंग टू हैपन इज कि बहुत सारी ख्वाहिशात में से कुछ ख्वाहिशात जो है अच्छी वो पूरी होती नजर आती हैं। एक अनजानी खुशी जो है ना उसमें रहेंगे आप इस हफ्ते में इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको आगे भी खुशियां अता करे। अच्छा, अब जो ट्रैवलिंग का प्लान करके बैठे हुए हैं होती अफराद, उनके लिए ये टाइम ठीक है। यानी अगर आप इनसाइड ऑफ योर कंट्री ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, चाह रही हैं, अच्छा आइडिया है, नॉट अ बैड आइडिया। अगर अपने काम, कारोबार, मुलाजमत के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, चाह रही हैं, तो भी टाइम बेस्ट है। ये जो पाइसेस वाले हैं इनके लिए, ख़वातीन हज़रात, उनके लिए कलेक्टिवली बात कर रहा हूँ मैं, कि ये टाइम जो है ये बिजनेस की एक्सपेंशन को प्लान करने का टाइम है। बिजनेस एक्सपैंड करें, नए वेंचर्स की तरफ जाना अगर सोच रहे हैं तो इस हफ्ते में
उस प्लानिंग से रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस कीजिए। वो कॉरेस्पॉन्डेंस का जवाब जो है वो पॉजिटिविटी में आता हुआ नजर आता है, क्योंकि ये हफ्ता खतों किताबत के लिए, ईमेल राइटिंग के लिए, राइटिंग के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और कई पाइसियंस जो हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ भी हैं कि जो मतलब आर्टिस्टिकली आर्टिकुलेटेड एक चीज़ जो ये प्रेजेंट करते हैं उसका एक डीप इम्पैक्ट होता है। तो ये है कि अपनी जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उसको प्रॉपरली डिज़ाइन करें नए वेंचर्स के लिए, एक्सपेंशन के लिए। इवन जो जॉब सीकर्स हैं पाइसियंस, वो अपनी एप्लीकेशंस को ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स बना के भेजें, तो आपको मुलाजमतें भी जल्दी जो है वो मिलती नज़र आती हैं इस हफ्ते में। बहरहाल आप इस तरह से करें। रिस्क जो है वो कोशिश करेंगे ना लें बिजनेस में, या अपने जो पर्सनल रिलेशंस हैं या आपके लव अफेयर्स हैं, कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे आपका जो ऑपोजिट है वो हर्ट हो जाए। वैसे भी नहीं करना चाहिए इस हफ्ते में, और किसी को भी नहीं करना चाहिए। पाइसेस को इस हफ्ते में ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, फिर ये कि आर्ट के शोबे में आपकी दिलचस्पी जो है वो बढ़ती नजर आती है। आपकी जो खूबसूरती है उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, और हासिदीन आपके जो हैं वो अल्लाह ताला उनको ज़ेर करेगा, यानी कि चित हो जाएंगे हासिदीन इंशाअल्लाह ताला। और बाकी ये है कि जो म्यूजिक लवर पाइसियंस हैं उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा है। म्यूजिक के शोबे में काम करें, कर सकते हैं, और अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो ले सकते हैं। ठीक है जी। अखराजात में अगर इजाफा होता है बैलेंस हो जाएंगे, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। कोशिश करें सेविंग साइड पे रहें, वैसे भी आप समझदार लोग हैं। अब हम बात करते हैं कि सदकात जो हैं वो हम आपके लिए क्या सजेस्ट करते हैं। हमेशा की तरह वही आपको मैं बताता हूँ कि मुस्तहिकीन को दें। और क्या है कि दाल चना दे सकते हैं, सुर्ख शक्कर दे सकते हैं, सुनहरी कपड़ा दे सकते हैं, नमक दे सकते हैं, नकद रकम दे सकते हैं, बड़ा गोश्त दे सकते हैं, और जिंदा जानवर दे सकते हैं। सदका रद्द बला मौत तक को टालने की कुव्वत रखता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपके पढ़ने के लिए जो है वो ये है कि आपने या फत्ताह या अल्लाह हो, या फत्ताह हो या अल्लाह हो, ये आपने हर नमाज के बाद एक तस्बीह जो है अव्वल व आखिर 3, 5, 7, 11 मरतबा, 21 मरतबा, जो आपका तबा जिस तरफ जाए वो दुरूद शरीफ पढ़ें, और दरमियान में एक तस्बीह या फत्ताह हो या अल्लाह हो की ये पढ़िए। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला खैर करने वाली पाक ज़ात है। जी व्यूअर्स, वीडियो आपको कैसी लगी है आप काइंडली कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कीमती कमेंट्स दीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो काइंडली लाइक कर लें इसको। और मेरी एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जनाब, अगर आप इस चैनल पे डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर पे नए हैं, पहली दफ़ा विजिट किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बड़ा मशकूर हूँगा आपका, क्योंकि आपका अपना चैनल है। दूसरी बात ये कि जायचा जो अगर आप बनवाना चाहें, ये नंबर जो आते हैं स्क्रीन के ऊपर, इस पे आप कांटेक्ट कर लें। जो उसका तरीक़ाकार है वो आपको बता दिया जाएगा। और ये ध्यान में रखिएगा काइंडली कि जायचा जो है ये एक पेड सर्विस है, इसके लिए एक कंसल्टेशन फ़ी है। जायचा बनने में भी टाइम लगता है, फिर आपके साथ जो सेशन होता है हमारा, उसमें भी मैं अच्छा खासा टाइम जो है, मेरे व्यूअर्स जो हैं, जो मेरे बहन भाई जिनसे मेरी बात हुई है, वो भी इस बात को एंडोर्स करेंगे। प्रॉपर टाइम देता हूँ मैं। और दूसरा ये है कि बाकी आपकी जो गाइडलाइंस हैं, रेमेडीज़ हैं, वो उसके अंदर डिस्कस हो सकती हैं। बट ये है कि मुझे कई बार फ़ोन आता है कि आप पैसे लेते हैं। तो भाई ये जो चीज़ है, प्लीज़ इसको समझ लें कि हॉरोस्कोप जो है इट्स अ कंसल्टेशन। दुनिया में कंसल्टेशन आप कहीं पे भी लेने जाएंगे, प्रोफेशनल कंसल्टेशन, तो वो आपको एज ए पेड सर्विस ही जो है वो दी जाती है। तो प्लीज़ इसका आपने माइंड नहीं करना। जो इसका तरीक़ाकार है वो मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे, और अगर आप चाहें तो ये नंबर्स आपके सामने। बहुत शुक्रिया।